Hey, beautiful soul. Today you are seeing two people on this frame. Both of them have got a transplant done. Uh, एक मैंने किया इनका और एक मेरी टीम ने किया मेरा. So both are FUE. And how many grafts did we do for you? It's 2,700 grafts. 2,700 grafts we did for Kuldeep, and in my case it was around 1,300 grafts. So stay tuned. This is an important video, and we are going to discuss some important facts and how this we all. I mean, we you can see the result looks awesome, and I'll tell you the real story behind this result. So let's talk to the man himself. Kuldeep, how are you? I'm good. What about you? Great. So how does it look? It's literally awesome. I'm feeling like that I got a new life because before transplant, I was thinking that my life got changed and I'm just hiding my hairs from that side. And after that, I was feeling like yeah, it was like a miracle for me because मैंने नहीं सोचा था लिटरली क्योंकि एट द एज ऑफ 23 और 24 मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सिटिंग बहुत तेजी से जा रहे हैं और नर्वस बहुत ज़्यादा हो रहा था लाइफ को लेकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मेरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया 2 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ्स लिटरली ड्यूरिंग शेडिंग फेज आई वाज थिंकिंग कि कुछ गलती हुई है और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर क्योंकि आई कैन सी दैट कि दैट पार्ट ओनली वेयर द हेयर वाज देयर बस वही पार्ट सही चल रहा था बाकी मेरा पूरा पार्ट चिकना हो गया था काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ आफ्टर 7 मंथ्स यू कैन सी द रिजल्ट So आपने जब ट्रांसप्लांट करा अभी और आपके फ्रेंड्स देखते हैं इसको, तो क्या किसी को समझ में आता है, लगता है कि ये ट्रांसप्लांट है? नो नो So it looks so natural, and एग्जैक्टली even I, when I saw you, met you just now, I could not believe that this is a transplant, and it really looks awesome, amazing. So how has been your journey like? आपका दवा के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा. So what all medications are you taking now? Okay. Currently, from last 7 months, I'm taking minoxidil, alternative days, Proctar K shampoo, as you have discussed. With for dandruff? Yeah, exactly. Almost twice a week, I think so, or maybe in a thrice a week sometimes. That another medicine, what you call for the dandruff. Oh, Topical. dandruff. I think so. Topical, topical. Topical. And I'm taking that medicine almost 3 days. Between every 3 days and हेराड किट तो ले ही रहे हैं वो तो और फिनेस्ट्राइड तो फिनिस्ट्राइड नहीं ली मैंने डे 1 से मैंने फिनिस्ट्राइड यूज भी नहीं किया और व्हाट अबाउट पीआरपी सेशंस जैसे अब 7 महीने हो गए हैं अभी तक आपका हमने कोई किया है ट्रांसप्लांट एक बार सिर्फ जब ट्रांसप्लांट करवाया था तब ट्रांसप्लांट के वक्त उसके बाद नहीं हुआ सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टेक होम मैसेज you know PRP multiple sessions I have seen people getting every month pricked on their head. They go for monthly PRP sessions post transplant, which is obviously not necessary. It's been 7 months, we haven't done a single session of PRP since transplant, and the hair are amazing. In fact, the other patient which you are seeing on the screen, myself. So not everyone needs PRP session, and that many PRP sessions are not needed. And second important fact, finasteride. I have spoken volumes about finasteride. If you haven't already watched, go and watch this. The videos, the list is given in the description. The playlist is there. See what impact this medicine finasteride can have on your hair transplant results. Now, what makes this hair transplant so amazing and interesting is the fact that we haven't used finasteride. And suppose and in case हम use करते हैं finasteride, तो आप जानते हैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़्यादा थिक और घना दिखने वाला है बिकॉज फिनेस्ट्राइड ये जो आप देख रहे हैं ये 5 काम फिनेस्ट्राइड करती है इट डज थिकनेस बढ़ाना और ये सब करना सब कुछ फिनेस्ट्राइड करती है एंड अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट कैन लुक अमेजिंग विद फिनेस्ट्राइड so many a times people compare when they compare results they see the density they see the natural look of hairline but what they miss out is the fact that if they are comparing
a result where 1 mg finasteride per day has been given with a result where no medicine or no finasteride has been given. There is no match, no match. The skill set is at different level. But जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप ट्रैप में फंसेंगे. ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो 12 महीनों पर रिजल्ट के क्लिनिक्स के सोफास पे बैठ के वीडियोस बनाकर आते हैं और 15 महीने पर हमारे पास बैठे होते हैं बिल्कुल खाली, क्योंकि दवाई छोड़ने पे वो सारा पोर्शन एकदम खाली हो चुका होता है और तब वास्तविकता पता चलती है हेयर ट्रांसप्लांट की. तो काफ़ी लोग जो ये सोचते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट उनका आ गया है या कोई रिज़ल्ट देखकर आप प्रेरित होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं ये ट्रांसप्लांट कराऊं, ऐसा कराऊं, अच्छा लगेगा. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको गहरा रिसर्च करना चाहिए. इस मेडिसिन का क्या इम्पैक्ट रहता है ये आपको ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए. और अभी मैं थोड़ी देर पहले कमेंट देख रहा था अपने सेक्शन में यूट्यूब के किसी वीडियो में, तो वहाँ लिखा हुआ था कि आप फिनेस्ट्राइड खिलाकर या बिना खिलाए कैसी भी स्थिति में आप वो रिज़ल्ट दिखाओ जो बाकी लोग दिखाते हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक माँ बेटा आए हुए थे दिखाने के लिए हेयर लॉस के लिए. सो आई वॉज जस्ट आस्किंग द बॉय कि भाई आप बाहर का खाना खाते हो, बाहर की दाल, तो उस दाल के अंदर खूब मसाला डाला होता है और खूब सारा घी या तेल डाला होता है. तो अगर आपकी मदर ये दाल आपको घर पर बनाकर दे दें तो क्या आप खा लोगे? तो उसका जवाब था बनाकर ही नहीं देती मदर, ये वो बनाती ही नहीं है ये वाला. तो आप कितना भी फोर्स कर लो, आपकी मदर आपके लिए वो कभी कोई चीज़ नहीं बनाएगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है. और यही फार्मूला जब हम ट्रांसप्लांट्स करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से फोर्स किया जाए, प्रोवोक किया जाए, मुझे बोला जाए कि आपको काम नहीं आता, मुझे बोला जाए कि आप वैसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, आप भी दे दो, क्या हर्ज है, या मैं देखूं कि बहुत सारी चीज़ें. बट फिर भी अगर मदर बच्चे के लिए ख़राब चीज़ बना ही नहीं सकती. तो इसी तरीके से जो आपके लिए ठीक नहीं होगा वो हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे उससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता. हम वही करेंगे, वही चीज़ जो कि मुझे लगेगा कि आपके लिए ठीक है, और इसमें हम कमर्शियल एस्पेक्ट्स और ये सब कुछ नहीं देखते. तो एनीवे अब आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए इसके बाद से? बेसिकली लाइफ में चेंजेस मेरे यही आए हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स मेरे नहीं पहचान पा रहे हैं. झूठ नहीं बोलूंगा मैं, उनको नहीं समझ में आ रहा. आई टोल्ड इन माय अर्ली डेज, आई टोल्ड देम कि पीआरपी सेशन करवाया है, इट्स ओके. और उनको पीआरपी का मतलब भी नहीं पता, सीधी सी बात है. ठीक है, क्योंकि कहीं सर्च नहीं किया कि कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा. और मैक्सिमम लोगों के साथ में, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबके साथ में प्रॉब्लम है कि रिसीडिंग हेयरलाइंस होती जा रही है. बट दे आर मे बी वी कैन से दैट दे हैव अ फियर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस कि यार बहुत दर्द होगा, ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा होगा, मुझे देखने में डर लग रहा है, FUE क्या है, FUT क्या है, ऑल ऑफ दिस. तो मैं यहाँ आने से पहले भी मैंने थोड़ी रिसर्च अपने हिसाब से की थी और ज़्यादातर वीडियोस मैंने डॉक्टर शेल के ही देखे थे उस टाइम पे भी. और आफ्टर माई ट्रांसप्लांटेशन मैं ये कहूँगा कि दोस्तों को तब तक पता नहीं चला जब तक मैंने नहीं बताया है उनको. लेकिन जब मैंने बताया है तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं कि यार मुझे ले चल एक बार डॉक्टर के पास में दिखवा दे, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ. और क्योंकि उन्होंने मेरे रिजल्ट देख लिए आफ्टर 7 months की हाँ ये रिजल्ट होता है, रियल में इसका हुआ है, जो मे बी सर जब दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट रियल में है 7 months से, और विदाउट फिनेस्ट्रॉइड है हम लोगों को. और मैंने डे 1 से, मुझे भी पता था ये चीज़ की फिनेस्ट्रॉइड की थोड़े साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्ली एज में हूँ मैं और प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, इसलिए मैंने भी नहीं लिया. सर ने भी मुझे सजेस्ट कभी किया ही नहीं है. तो इट वॉज लिटरली गुड. आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि लाइफ को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव है मेरी. मैं आई थिंक सो लास्ट ईयर मैं कहीं नहीं घुमा इस चक्कर में, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे से लेके घूमता था, लेकिन इस चक्कर में क्योंकि यहाँ से आगे से मेरी रिसीडिंग हेयरलाइन हो रही थी. इस साल मैंने शायद 12 या 13 ट्रिप्स मार दी. अब तो दुग्गल साहब बने हुए हो आप. तो इसकी भी एक लंबी स्टोरी है. हाँ, बट ये मैं भी बोलना चाहूँगा कि मैं भी आपका अभी रिजल्ट देख रहा था तो मैं पहचान नहीं पाया कि
ये ट्रांसप्लांट है. I thought इवन यू फॉरगॉट मी व्हेन आई हाँ टोल्ड यू स्टोरी कि मेरे लंबे बाल, तब आपको याद आया कि हाँ हाँ आप वो पर्सन थे. हाँ बिल्कुल मैं भूल गया था क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है अगर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद ही ना पहचान पाए कि ये ट्रांसप्लांट हो रखा है तो आई थिंक दैट इज़ Phenomenal. रियली फिनोमिनल एंड अमेजिंग. एंड हाँ, और जैसा कि कुलदीप ने बोला एक इम्पॉर्टेंट बात कि बिना दवाई के आप देखो रिजल्ट्स आप बहुत देखोगे. हो सकता है आप जो आप कुलदीप का रिजल्ट देख रहे हैं उससे भी और ज़्यादा सुंदर दिखने वाला रिजल्ट भी देखें. अगर मैं आज इनको फिनेस्टाइड खिला दूँ वो भी 1 mg पर डे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये और क्या दिखे. बट क्यों एक माँ अपने बच्चे को कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं देगी जो उसके लिए अच्छा ना हो. That's a short term results. दैट्स अ शॉर्ट टर्म ग्लोरी शॉर्ट फेम. बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज़ें बट आई थिंक नॉट एवरी पेशेंट नीड्स इट. मैं दवा के खिलाफ नहीं हूँ. बार बार मेरी कभी भी किसी वीडियो से ये निष्कर्ष ना निकालें कि मैं दवा नहीं देना चाहता या दवा के खिलाफ हूँ. मैं भी इस दवा का इस्तेमाल करता हूँ उन पेशेंट्स में जिनमें ज़रूरत महसूस होती है. पर जिनमें नहीं होती ऑब्वियसली उनको सिर्फ अपना रिजल्ट जो भी मैंने एक्स काम किया उसको 2x 3x 4x दिखाने के लिए या मैंने कोई कम काम कर रखा है और कमिट ज़्यादा कर रखा है उसको कंपनसेट करने के लिए मैं आपको कभी ऑब्वियसली दवा नहीं देने वाला. तो ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. तो बाकी तो एक बार रिजल्ट को थोड़ा क्लोजली और देखते हैं. सी एनी आर्टिफिशियल ट्राइंगल्स हेयर? Nothing. It's so beautiful. It has been merged. Now the three key important aspects of transplant hairline especially. One is the density, and we can have a closer look at the density. So the density in which we didn't have any hair is looking really great, good. Now the second aspect is merging. So if you see the exist where these transplanted hair end and where is original existing hair start, we cannot make out. So that is the second important aspect, merging. And third is the softer look of hairline, natural softer look of hairline, which we have created, and we have worked on the temples also there, and it looks very natural. Now when I add finasteride and especially 1 mg, that medicine adds real adds value to that result. I mean it will do merging, it will do density work for you, and it will create so many softer hair in this area. So that means it takes sometimes more than half the burden of transplant, and the entire credit goes to surgeon. So this is something which is important to understand. Now uh, he's not losing hair from these areas, these areas are good. So maybe in case if there is any thinning, then we can add the medicine, otherwise it is good. Let's have a look at the donor as well. Turn around please. So the donor seems pretty okay, though with FUE there is reduction in the density and multigrafts mostly have been used. So next time, suppose in case we need any hair transplant, the method of choice would be FUT. Turn around please again. Turn around. Okay. Now we have intentionally kept a high hairline so that in case in future if he needs a transplant in this portion, we don't run short of donor, and that is very important. So all these facts if you keep in mind while planning your hair transplant, you will end up having a good hairline, natural results, and more sustainable version of your hair transplant. But in case you don't pay attention to these minute details and you just fall prey to marketing gimmicks and especially that small tablet of finasteride, you may end up with a lot of problems and issues. So it's eventually your choice. Those patients, those people who want their assessment to be done or who want to plan their journey, they can just click the link given in description. There is an e-brochure. To download that, you can fill that form, and this brochure is about planning your hair transplant journey, easy 7-step guide. So you can plan your journey. It's a journey, it is not one point destination, remember this.
And thank you, Kuldeep. Thank you for sharing your experience. Yep. And thank you so much. Thank you. It's a pleasure. Take care. Yeah.